નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું કુંજ. ભારતીય જનતા પાર્ટીની પૂર્વ પ્રવક્તા નુપુર શર્મા અને નવીન જિંદલ તરફથી પૈગંબર મોહમ્મદ વિશે વિવાદિત ટિપ્પણીના વિરોધમાં દેશભરના અનેક શહેરોમાં બબાલ ચાલી રહી છે. દેશના 12 રાજ્યો સુધી હિંસાની આગ પહોંચી છે. યુપીના પ્રયાગરાજ, બંગાળના હાવડા, ઝારખંડના રાંચી સહિત ઘણા શહેરોમાં હિંસાત્મક પ્રદર્શન થયા. ત્યારબાદ ઘણી જગ્યાએ કર્ફ્યુ પણ લગાવી દેવાયો છે, તો કોઈક જગ્યાએ ઇન્ટરનેટ પણ બંધ કરી દેવાયું છે. આ હિંસા બાદ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ એક્શન મોડમાં છે. ત્યારે ઝારખંડના રાંચીમાં શુક્રવારે ભડકેલી હિંસામાં 2 લોકોના મોત પણ થયા. આ હિંસા બાદ રાંચી શહેરના 12 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કલમ 144 લાગુ કરાઈ છે. આખરે વાત કરવી છે આ શાંતિ અને ભાઈચારાના દુશ્મન કોણ છે તે સવાલ થઈ રહ્યો છે, અને આ જ મુદ્દા ઉપર આજે વાત કરીશું સીધો સંવાદમાં. આખરે વિરોધ માટે હિંસાનો સહારો કેમ? આજ મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે ગેસ્ટ જોડાયા છે. મૌલવી ફૈયાઝ મૌલવીજી છે, જ્યોતિર્નાથ મહારાજ ધર્મગુરુ છે. આ બંનેનું સ્વાગત છે આ ચર્ચામાં. જ્યોતિર્નાથજી, સૌપ્રથમ આપનો મત જાણવા માંગુ છું. આખરે વિરોધ માટે હિંસાનો સહારો કેમ? આજે ઘટનાઓ બની રહી છે, કયા પ્રકારે જુઓ છો આપ? ખરેખર આ એક દુઃખદની વાત છે કે આવી રીતની હિંસા કદી થવી ન જોઈએ. પહેલી વાત તો તમારો વિરોધ છે અને એ વિષય ન ભૂલવો જોઈએ કે આખી પ્રક્રિયામાં નુપુર શર્મા સાથેના જે બીજા લોકો હતા, જે લોકો મુસ્લિમ સમાજ તરફથી હતા, તે લોકોએ પણ શિવની મસ્કરી કરી હતી, શિવ વિશે ગમે તેમ બોલ્યા હતા. તે અગાઉ દાનિશ કુરેશી અમદાવાદમાં બી શિવ વિશે ગમે તેમ લખ્યું હતું. ત્યારે આ બધા બનાવો બને ત્યારે આવી જ ઉગ્રતા કદી હિન્દુઓએ અપનાવી નથી. તો કયા કારણસર, કયા માલાફાઈડ ઇન્ટેન્સથી ને સમાજની અંદર આવું વાતાવરણ ઊભું કરીને શું સાબિત કરવા માગો છો? સમાજમાં બધા ધર્મોએ એકબીજાની ઇજ્જત કરવાની જરૂર છે. હું નુપુર શર્માની વાતને ખરી છે એવું નથી કહેતો, પણ પેલા લોકો બોલ્યા હતા તેના જવાબમાં જવાબ હતો બંને જણનો. તમે જ્યારે કોઈના ભગવાનની અવહેલના કરશો ત્યારે આજે હું કોઈના બાપના વિશે ગાર દઉં તો કોઈ આપના બાપના વિશે ગાર દે તો સાંભળવી પડે, એવી કન્ડિશન ઊભી થાય. આજે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. તમે આખી ડિબેટને બહુ ધ્યાનથી તે સમયે જોયું હોય તો ખ્યાલ આવે કે શું પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. અને તે ખરેખર આ વિષય દુઃખદ છે, બંને પક્ષ તરફથી દુઃખદ છે, પણ શરૂ ક્યાંથી થયું તે દરેકે વિચારવાની જરૂર છે. ચોક્કસથી મૌલવીજીનો મત જાણીએ. મૌલવીજી, આખરે વિરોધની પણ રીત હોય, રજૂઆત હોય, પરંતુ આખરે આ વિરોધ માટે હિંસાનો સહારો કેમ? કેમ કે એક જગ્યાએથી લઈ અત્યારે અનેક રાજ્યો સુધી આ હિંસાનું આજે પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. શું કહેવું છે આપનું? सर, बात ऐसी है कि हिंसा प्रदर्शन करना, ये करना हमारा संविधान अधिकार है. अब जहाँ हिंसा हो रही है उसमें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हिंसा होने न दे. और हम लोग आज से नहीं है, हम लोग बरसों से इस बारे में मांग करते आए हैं हुकूमत से कि भाई एक जानवर के लिए आप कानून पास कर सकते हैं, आप 3 तलाक के लिए रातों रात मुद्दा पास कर सकते हैं, तो आप हमारे पैगंबर या सबके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वक्त 6 महीने 4 महीने गुजर जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाता है, उसको पता है कि हम लोग इस तरीके की बातें करेंगे तो इस पर हिंसा होगी, इस पर बवाल होगा, हमें सस्ती शोहरत मिलेगी. तो हुकूमत अगर इस पर कड़ी नजर रखकर ये काम करती है तो ना हिंसा होगी, ना किसी को प्रदर्शन करने का वक्त मिलेगा. संविधान है, कानून है. अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू मजहब के खिलाफ बोला है उसके लिए भी कानून है, आपको फौरन उसी वक्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. इस्लाम धर्म ने किसी को भी ये बोलने की इजाजत नहीं दी है कि भाई कोई धर्म के खिलाफ बोलो. सबका सम्मान करना चाहिए. कुरान की आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि हर एक का मजहब अपने साथ है, अपने मजहब को अपनाओ, अपने मजहब के साथ रहो, जियो. कोई किसी के मजहब की टिप्पणी नहीं कर सकता है. और महान पैगंबर जो हैं वो तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बनकर नहीं आए. आप जानते हैं, आपने उनकी किताबें, आपने उनके बारे में पढ़ा है. वो सारी दुनिया को एक शांति का पैगाम देने के लिए વાત સાચી આપ કહી રહ્યા છો કે ધર્મની સાથે રહીએ, પરંતુ વિરોધ નોંધાવો છે તો વિરોધ કરવા માટે હિંસાનો સહારો કેમ લે છે? सर, हिंसा कब होती है? अगर पुलिस हिंसा करना नहीं चाहे, आप देख रहे हैं कि कई वीडियो आपने देखा होगा कि पुलिस सीधा गोली मार रही है
और पुलिस गोली कब मार रही है? पुलिस को इस तरह अथॉरिटी किसने दी है गोली मारने की? आप सीधा सर के अंदर गोली मारोगे तो आप देख रहे हैं हिंसा कब होती है। हुकूमत अगर नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि हुकूमत अगर नहीं चाहेगी ना कि हिंसा हो तो नहीं हो सकती है। ज्योतिनाथ जी आप इस पे की दबाव कही करो, रहा आप છે ज्योतिनाथ कानून जी ने लागू करो। सांभळिए जो लोग इस तरीके की ज्योतिनाथ बातें महाराज करते हैं, और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल जो है एक देखो भाई साहब, देखो एक बात बताऊं कि आज तक आप बोलते हो आए दिन होता है, तो मैं ये बताऊं कि असउद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहले राम के बारे में बोला था। इसके बारे में अभी दानिश कुरैशी ने और इनके साथ में साथी जो इकबाल जी और ये सब थे, उन लोगों ने भी शिव के बारे में बोला, शिव के बारे में लिखा। तो ये कहाँ तक जायज है? ये दोनों साइड चलता है। आप बोलते हो कि कानून पारित होना चाहिए, तो एक पैगंबर साहब के प्रति आदर है, मगर पैगंबर साहब के लिए बोला तो आपके मौलाना ने भी ये चीज बोली है, जो चीज नुपुर ने बोली है। ये कोई नई बात तो बोली नहीं है। और साथ में आपके वहां से हमेशा शिवलिंग के बारे में हमेशा मैंने देखा है कि राम के बारे में, शिवलिंग के बारे में, सीता के बारे में, ये शब्द कृष्ण के बारे में बोलते रहते हो, तो क्या एक बाजू से ही होता है क्या? ચોક્કસ મૌલવીજી ને સાંભળે दो बाजू की बात नहीं है। बात यह है कि आपके पास कानून है। हाँ सर, ऐसा है कि हमारे भारत देश के अंदर कानून है, संविधान है। आप कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ऐसा तो नहीं कि कोर्ट आपकी सुनती नहीं है। जिसने बोला है उसके लिए कानून है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो ना। आप क्यों नहीं करते हो कानूनी कार्रवाई? आपको किसने रोका है कानूनी कार्रवाई करने के लिए? मुसलमान बोलता है मुसलमान के खिलाफ कानून, हम उसके फेवर में नहीं है। तो इस्लाम धर्म उनके फेवर में नहीं है। जिसने बोला होगा उसका एक अपना पर्सनल मसला है, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। अरे बात ત્યાં જ આવીને અટકે आप डिक्लेयर कर दो ये लोग गैर मुस्लिम है। જ્યોતિનાથજી મહારાજજી આપને એક પ્રશ્ન પૂછવો છે આ મુદ્દા ઉપર। આખરે સમાજને જોડવાની વાત થાય છે, આ તોડવાનું કામ આખરે આ કોણ કરી રહ્યું છે? કારણ કે મુદ્દો ક્યાંક અલગથી શરૂ થયો હતો, આ શું સ્પેસિફાઈ ક્યાંય ટાર્ગેટિંગ કરવામાં આવી રહી છે આ ઘટનાઓને હાલ જે બની રહ્યું છે કે ચોક્કસથી કોઈ નિવેદન આપે છે અને તેને પકડી લેવામાં પહેલી આવે વખત નથી બોલ્યું, અને આ એમના મૌલાનાઓ દ્વારા પણ કુંજ આ વસ્તુ પહેલી વખત નથી થઈ। એમના મૌલાનાઓ દ્વારા પણ આ જ વસ્તુ બોલાઈ છે કે જે નુપુર બોલી છે। એનાથી આગળ જતો રહું તો વારંવાર અમે તો દર વખતે અસઉદ્દીન ઓવૈસીના ભાઈ અકબરુદ્દીન ઓવૈસીએ કર્યું ત્યારે પણ મેં કેસ કર્યો હતો, દાનિશ કુરૈશીએ કર્યું ત્યારે પણ કેસ કર્યો, નુપુર શર્માની સાથે જે ઇકબાલ બોલ્યા છે તેની પર બી મેં કેસ કરેલો છે। તો લીગલી તમે બી જાઓ ને, તમે બી કેસ કરો, તમને ના પાડતા જ નથી। અમે લીગલી તમને લડવાની છૂટ છે, પણ તમે જે એકદમ ટોળે વળીને સુઆયોજિત કાવતરાપૂર્વક હુમલા કરવાના ચાલુ કરી દો, સુઆયોજિત કાવતરાપૂર્વક નમાઝ પછી જ, શુક્રવારની નમાઝ પછી, જુમ્માની નમાઝ પછી જ એક પ્રકારનું આયોજન કરીને તમે લોકો રોડ ઉપર ઉતરી આવો, આ ક્યાંથી છે? એકતાની વાત કરો। ધર્મ કરતાં દેશ મોટો છે, દરેકે યાદ રાખવું પડશે। હું પણ કહું છું મારા ધર્મ કરતાં મારો દેશ મોટો છે ને દેશની એકતા અને અખંડિતતા માટે બધું જ કરવું પડશે। પણ હું એમ કહું કે ધર્મનું અપમાન સહન કરવા તૈયાર નથી તો લીગલી દરેકના સંવિધાનમાં દરેકનો ઉલ્લેખ છે। તમે જાઓ, એનો ઉપયોગ કરો, તમે લડો, તમે આવેદન આપો, પણ તમે જે રીતે રોડ પર ઉતરી આવીને જે રીતે માર્કેટમાં કોહરામ મચાવો તે ક્યાંય નો ન્યાય છે। આ સમાજને તમે ક્યાંક બાનમાં લેવાની કોશિશ કરો છો। શું સમાજની ઉપર કઈ રીતનું વાતાવરણ ઊભું કરવા માંગો છો? આ યોગ્ય નથી। એટલે આ વખોડવા જેવું કૃત્ય છે, કારણ કે આ એકત્રિત થઈને સમગ્ર ઇન્ડિયામાં એક જ સમયે એક જ ટાઈમે પ્રિપ્લાન પૂર્વક આ જે થયું તે યોગ્ય નથી। ચોક્કસથી મૌલવીજીનો મત સાંભળી લઈએ। મૌલવીજી, सर आप बोल रहे हैं कि एक वक्त में प्रिप्लान, कोई भी अगर प्रदर्शन करता है तो पुलिस परमिशन लेके करता है, बगैर परमिशन के कोई नहीं करता है। और पुलिस परमिशन नहीं देती है तो कोई प्रदर्शन करता नहीं है, आपको ये भी पता है। आप बोले कानूनी कार्रवाई होने के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ 3 जगह पर एफआईआर होने के बाद जी मौलवीजी परमिशन क्या लेવામાં આવી હતી? जिन लोगों ने भी प्रदर्शन किया है वो बगैर परमिशन के तो कर नहीं सकते ना। कहाँ पुलिस की परमिशन ली गई थी ये बताइए आप। मैं वही बोल रहा हूँ ना जी, ये बगैर परमिशन से हुआ है। मैंने सीपी साहब से बात पूछी, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ौदा, किसी ने भी परमिशन नहीं लिया है। चलो
हाँ, तो जिसने परमिशन नहीं ले उसके लिए कानून है ना, कानून काम करेगा। हम कानून में इंटरफेयर ना आप करेंगे ना हम करेंगे। हम तो वही बोल रहे हैं कि हम देखो देश के अंदर शांति का पैगाम दे रहे हैं। आज हमारे मुल्क में 70 बरस में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सारी दुनिया हमारे देश के ऊपर थू थू कर रही है। तो हम अब देश को बदनाम करना चाहते हैं, बेइज्जत करना चाहते हैं। आज आपको पता है कि 80 लाख हमारे देशवासी, भारतवासी आज बाहर मुल्कों में नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। अगर उनकी सर्विस जाएगी, वो घर आकर होगी, तो आप उनका पूरा करोगे, उनकी फैमिली का। तो आप करना क्या चाहते हैं? देश को कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हैं? हमारा ये कि देश में शांति का पैगाम दो। ऐसे आरोग्य जो हिंसा होती है, आरोग्य जी एक आदमी के बोलने की वजह से पूरा देश भड़कता है। तो आपको एक आदमी पसंद है या पूरे देश का प्यार पसंद है? हम ये सवाल करना चाहते हैं। मौलवी जी, आप જે કહી રહ્યા છો સવાલ આખરે આ ત્યાં થઈ રહ્યો છે, જે ઘટનાઓ બની રહી છે, સમાજને જોડવાની વાત છે, સમાજને જોડવાની વાત છે, તો સમાજ તોડનારાઓ આ કોણ છે? કારણ કે એક અન્ય દેશો પણ છે, અન્ય દેશોમાં પણ જે ઇફેક્ટ થઈ રહી છે, લોકોનો જોવાનો નજરિયો બદલાતો જઈ રહ્યો છે। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ सर कि आप देश में से प्यार का पैगाम दो। हमारा भारत देश सारी दुनिया से प्यारा है और सब हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे हैं और रहते हैं और आजाद भी कराया है सबने मिलकर। तो वैसे इसको प्यार मोहब्बत से रहो। इसने बोला हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिससे हमारे देश में प्यार नहीं बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी। और आज जो हो रहा है ये आप देख रहे हैं, इसको हम सबको मिलकर, जैसा भी हमारे जो महाराज जी आगे बैठे हैं, इनको भी मोहब्बत का पैगाम देना होगा। आप अगर वो कहोगे उसने बोला तो इसने बोला, इसने बोला तो उसने बोला, इस बोलने से हमारे मसले का हल नहीं निकलेगा, हमारे देश में शांति नहीं फैलेगी सर। इसको आपको कानूनी तौर पर ले जाकर हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। एक बाजू से नहीं होता है मौलवी साहब। जितने धर्म गुरु हैं, मुस्लिम समाज के जितने धर्म गुरु हैं, हमको नेताओं से कोई उम्मीद मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक बाजू से होता है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जो जवाब दे रहे हो उसके हिसाब से आप बोले कि जैसा उसने बोला तो इसने बोला, एक बाजू से नहीं जैसा होता जवाब है। पत्थर से मिला, उससे कोई मसले का हल तो नहीं होगा। हमारा देश बदनाम हो रहा है सर। हाँ, तो हम तो हर वक्त देते आए हैं पैगाम, और जिन लोगों ने किया है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करो। हम आप खुलेआम बोल रहे हैं, और इस्लाम ने कोई ऐसा आपको नहीं बोला है कि किसी के धर्म के खिलाफ जाकर खड़े हो जाओ। जो खड़ा होता है उसका पर्सनल मसला है, उसको कोई हमने हमारा बड़ा तो नहीं माना कि आप बोलो और आगे बढ़कर आप काम करो, हम आपके पीछे हैं। आपने सुना होगा नुपुर शर्मा का वीडियो, उन्होंने साफ बोला है कि मुझे समझिए क्या अपने गृह मंत्रालय से फोन आता है, मुझे ऊपर से फोन आता है, सबसे फोन आता है कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप इतना तो बोल सकते हैं ना उनको कि भाई आप धर्म के खिलाफ जाकर मत खड़े रहिए। नुपुर शर्मा कोई आम चीज तो नहीं है, वो एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि ये बोलने के ऊपर मेरे से क्या रिएक्शन आना है उसका। तो उन्होंने ऐसी बात की है, तो उनको आप समझाइए कि ऐसी बातें करने से। चलिए आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने उसको कमेटी से, आपने पार्टी से बाहर कर दिया, ये इससे पहले भी हो चुका है। पार्टी से बाहर करने के बाद थोड़े दिन के बाद उसको ऊंचे प्रमोशन पर ले जाकर आप खड़ा कर देते हो। इसका मतलब यही होता है कि आप उसको हिम्मत देते हो कि आप बोलते रहिए हम आपको प्रमोशन देंगे। तो इससे शांति थोड़ी फैलेगी देश के अंदर, देश के अंदर शांति का भंग होगा। तो हम शांति फैलाना चाहते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे, वो काम कीजिए, देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। आप भी पढ़े लिखे हैं, पहली शुरुआत ये पूरी डिबेट आपने अगर सुनी है तो पता होना चाहिए कि पहली शुरुआत आपके संप्रदाय के लोग प्रवक्ता जो बैठे थे उन्होंने की है। मौलाना सर जी, मैं उससे ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सर आपको यही बोल रहा हूँ पहली शुरुआत कानूनी कार्रवाई कीजिए वो ना। डिबेट के अंदर अच्छा, अगर बहुत चलिए ध्यान से नुपुर सुनो तो शर्मा पता ने, चलेगा चलिए मेरी बात सुनिए, नुपुर कि शर्मा एक जी के बाजू से खिलाफ पहले लेकिन शुरुआत आपने हुई, बोल दिया। आपके वहां से आपके हाँ, वो मुझे क्यों पता नहीं है, बताते मैंने हो सुना है। कि आपके हाँ, आपके प्रवक्ता के द्वारा, IMEI के प्रवक्ता और मुस्लिम समाज के प्रवक्ताओं के द्वारा खुला खुला शिव जी का अपमान किया गया, उसने मस्करी की, तो क्या होता है उसका जवाब? वो क्यों नहीं बताते हो आप लोग? तो उसको बोलिए ना, कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, कानून आपके सपोर्ट में खड़ा है। हम का ना बोल रहे हैं आपको, क्यों नहीं बताते? मतलब हम का चैनल चला तो दोनों साइड कानूनी कार्यवाही चल रही है। हमने भी केस दायर किया है और लोगों ने भी केस दायर किया है, उसका नतीजा क्या आता है वो देखो। आप रोड पे उतरोगे, वो रास्ता नहीं है। कानून पे भरोसा रखते हो तो कानून पे ही भरोसा रखो। अच्छा, नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है? हाँ, अच्छा, तो नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है, FIR हुई है, अरेस्ट क्यों नहीं हुई अभी तक सर? अरे सबके बारे में हुई, सबके पे केस दाखिल हुआ। आप बहुत ध्यान से उस पूरी मीडिया को देखो, पूरी सिस्टम को देखो। वो बैठे चारों डिबेटरों पर, दो हिंदू थे, 2 मुस्लिम थे, चारों पे केस दायर हुआ, क्योंकि उन लोगों ने भी गलत बोला था, इन लोगों ने भी गलत बोला है। मैं तो दोनों की बात बोलता हूँ। हाँ, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना आपको, मैं भी वही बता रहा हूँ कि हम शांति का पैगाम दे। आप धर्म गुरु हैं,
आप ये बोलोगे कि वो करेगा तो हम करेंगे, तो इससे शांति का पैगाम नहीं होगा। शांति का फिर भी हम रोड पे करेंगे, आके तो क्या शांति करना का चाहते हो? उन्होंने किया है, ऐसा लग रहा है कि मैं और आप अरे वही करेंगे फिर भी जो रोड बोल पे रहे हैं। आके क्या हम करना तो चाहते हो? आधी बात लोगों को हम तो बताई सिर्फ जाती रोड पर है, आकर कुछ नहीं करना चाहते, आपके वहां से आधी बात बताई जाती है कि नूपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में ऐसा बोला, मगर ये क्यों नहीं बताया जाता है कि शिव जी के बारे में उन लोग ने ऐसा बोला, इसके जवाब में इन्होंने ये बोला। મૌલિકજી આપે જ કહ્યું ધર્મ પહેલો હોવો જોઈએ, ચલો ધર્મ પહેલો માની લીધો, પરંતુ કાનૂની કાર્યવાહી થવી જોઈએ, તો આ પહેલા અત્યારે સંદેશો આ ઘટનાઓને રોકવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ ને? सबसे पहले घटना होनी नहीं चाहिए और सबकी जबानें बंद होनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपको पहले बैठने के साथ बताया कि कुरान की आयत है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हर एक का धर्म का सम्मान करो। जो नहीं करता, देखिए एक चीज आपको मैं आज खुलेआम बता देना चाहता हूँ कि जो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो किसी भी धर्म पर उंगली उठाता ना, जाहिर कर दो पहले कि ये लोग मुस्लिम नहीं है। आप इतना समझ के चलिए। दानिश कुरैशी हो, ये इकबाल बैठा था, वो है दूसरा कोई बैठा था, ये सबको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दो पहले। हाँ, तो उन्होंने अगर हमसे पूछ कर किया, आप दो बाजू बात करते हो, वो कोई हमारे बड़े नहीं है, वो बोले तो बोलते हो कि ये नहीं बोलना चाहिए। दुनिया पढ़ी लिखी है? नहीं, दो बाजू नहीं, एक बाजू कर रहा है। आप इनको क्या डिक्लेयर करोगे, नूपुर शर्मा को? दुनिया पढ़ी लिखी है, फिर भी आप पढ़े लिखे होने की बात करते हो, आप पढ़े लिखे होने की बात करते हो, पढ़े लिखे होने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक जुलूस खड़ा कर दिया जाता है, यहाँ पे एक लोगों पे प्रेशर डालने की बातें होती है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे ये बता रहे हैं, मेरी बात सुन, वो गलत है, मैं वही बोल रहा हूँ। दोनों के साइड पे आप पूरी चीज को बताइए लोगों को कि ये हुआ था, ये हुआ था, इसका जवाब में ये हुआ। वही बोल रहा हूँ सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ। हम किसी पे प्रेशर नहीं करेंगे। हमारा जाकिर हुसैन भी यही सब भारत देश संविधान से चलता है। कोई किसी पे ना आप मुझ पर प्रेशर कर सकते हो ना मैं आप पे प्रेशर। आपने क्या किया वो बताइए? क्या जाकिर नायक भी यही शब्द बोले थे, तो उसके लिए आप क्या किया वो बताइए मुझे। किसके लिए? जाकिर नायक यही शब्द जो नूपुर शर्मा बोली थी वो बोला, तो आपने उसके बारे में क्या किया? नहीं था, आप कुछ नहीं कर सकते थे। तब तो रोड पे कोई नहीं आया। अरे मैं तो यही बोल रहा हूँ ना सर, तब तो आप रोड पे कोई नहीं आया। कार्रवाई कीजिए ना। हाँ, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, रोड पर आते हैं। जाकिर नायक ने ये लफ्ज नहीं बोला होगा जो आप बता रहे हैं। आपके लिए भी कानून है, मेरा कहना वही है। टारगेट करने की जगह पे कानून का सहारा लीजिए। कानून एक साइड नहीं है, कानून दोनों के साइड है, कानून सबके लिए। हमारे भारत देश में आप भी अगर कानून शांति का को सहारा फैलाना है लीजिए। तो कानून है। हाँ, तो कानून दोनों के लिए है। कानून का सहारा नहीं लिया आपने, गैर कानूनी रिश्ते लोगों को इकट्ठा किया, आपने फतवा जाहिर किया, सब एकत्रित हो जावे। ये प्रक्रिया सरेआम गैर कानूनी कुछ नहीं हुआ करता है। और शांति और अवाम में, जगत में कोई मुस्लिम अगर सुखी से रहता है तो वह हिंदुस्तान में रहता है, और यही मुस्लिम समाज ये करता है तो हमको दुख होता है। જ્યોતિનાજી, ક્યાંક આ માની શકાય આપનું મત જાણવું છે આ મામલે કે સ્પેસિફાઈ આ એક નિવેદનને લઈને કોઈ આ ટાર્ગેટિંગ થઈ રહ્યું છે, માહોલ બનાવવાનો આ પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે, આ સ્પેસિફાઈ ક્યાં? 100% કુંજ આ માહોલ બનાવવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। મારું જે કહેવું છે તે આ જ છે, આખી બીનાને જાહેર કરવાની જગ્યાએ ખાલી નુપુરના વાક્યને જાહેર કરવાની વાત આવે તો આખી બીના એવી છે કે શિવજીનું અપમાન પહેલાં થયું હતું લાઈવ ડિબેટમાં, અને પછી નુપુર બોલી છે। તમે આજે તે પહેલાં બી મેં કીધું કે દાનિશ કુરેશી પણ આપણે ત્યાંથી શિવજી માટે અભદ્ર વાત લખી હતી, અભદ્ર, જેને આપણે ટીવી પર જાહેર પણ નહોતા કરી શકતા, કે હું બોલી પણ નથી શકતો। ત્યારે તમે કેમ બધા ચૂપ રહ્યા? તમારા વાળા જ્યારે બોલે છે ત્યારે તમે કેમ ના રોકી શક્યા? અસઉદ્દીન ઓએસીસના ભાઈ અકબરુદ્દીન ઓએસીસ રામ માટે બોલ્યા, શિવલિંગ માટે અસઉદ્દીન ઓએસીસ બોલ્યા, તમે બધા કેમ ચૂપ રહ્યા? તમારા જવાબમાં કોઈક જગ્યાથી તો કોઈક બોલશે, પછી કે અમારા માટે બોલે છે। માને આ જે વાક્ય છે તે જાકીર નાયક એમના જ મૌલવી બોલ્યા છે, ત્યારે કોઈ નથી બોલ્યું। યાથી 3 વર્ષ પહેલાં બોલ્યા હતા, 2 વર્ષ પહેલાં બી બોલ્યા છે, તમે લાઈવ વિડીયો જોઈ શકો છો, એમના તો ઓનલાઈન છે જ, ત્યારે કોઈ બોલ્યું નહીં। અને એ જ શબ્દ જ્યારે નુપુર શર્મા બોલે છે તો તેની સામે વાંધો ઉઠાવાય છે। મને સમજણ નથી પડતી કે આ કયું રાજકારણ છે। જ્યોતિનાથજી, અન્ય આજની જે ઘટનાઓ સામે આવી, નુપુર શર્માના નિવેદનને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે, જ્યોતિનાથજી આપને પૂછવા માંગુ છું, આ જે આજે ઘટનાઓ ક્યાંકથી હવે સમર્થન પણ મળતું દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે કે ક્યાંક જે હાલનો માહોલ જે બની રહ્યો છે
એ કયા પ્રકારે આપ જુઓ છો? એક તરફ સમર્થન, એક તરફ વિરોધ. કુંજ સરવાળે સમાજની અંદર વૈમનસ્ય ઊભું થાય છે. સમાજની અંદર આ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક દેશને તોડવાની વાતો પર લઈ જઈ રહ્યું છે. બે જાતિ અલગ અલગ વિભાગમાં વેચાઈ રહી છે. કારણ કે જ્યારે તમે એક બાજુ પ્રેશર ટેક્ટિક્સ અપનાવશો, તમે એક થશો તો સામે પેલા લોકો બી કહેશે. આજે હિન્દુ સમાજના લોકો બી કહે છે કે નુપુરની આગળ જે લોકો બોલ્યા હતા, શિવજીની મસ્કરીઓ કરી હતી કે શિવજી માટે ગમે તેમ બોલ્યા હતા, તે લોકોનું શું? એટલે સામે નુપુરનો સપોર્ટ પણ આવવાનો જ છે. આજે સમાજની અંદર હિન્દુત્વમાં કટ્ટરતાવાદી છે તો મુસલમાનમાં પણ કટ્ટરતાવાદી છે, પણ આનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. સમાજ સરવાળે રાષ્ટ્રને નુકસાન થાય છે, ને રાષ્ટ્રને જ્યારે નુકસાન થાય છે ત્યારે દુઃખ થાય છે કે ધર્મ કરતાં રાષ્ટ્ર મોટું છે. હું કાયમ કહું છું, આ વસ્તુ દરેકે યાદ રાખવાની જરૂર છે. ચોક્કસ. મૌલવીજીનો મત જાણી લઈએ. મૌલવીજી, भाई हम वही बोलते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में शांति का पैगाम दो. इस तरीके के बातें करने वाले दोनों समाज के लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके ऊपर पाबंदियां लगाओ, कानूनी कार्रवाई करो. हमारे पास संविधान है, संविधान के मातहत हमारा मुल्क चलता है, तो हम लोग संविधान के मातहत चलो और इसके लिए गवर्नमेंट पे दबाव करें. हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम मिलकर गवर्नमेंट पे दबाव करें कि आज के बाद कोई भी, चाहे मुसलमान हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, हिंदू मुसलमान धर्म के खिलाफ बोले, उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और फौरन सजा होनी चाहिए. तो पब्लिक को बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और ये सारा हमारा देश जो बदनाम हो रहा है होगा ही नहीं. तो इसके लिए हम सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा. खाली बहस और डिबेट करके इसका मसले का हल निकलने वाला नहीं. हम पब्लिक को नहीं समझा सकते हैं. पब्लिक अलग अलग तरीके, ना आप हिंदू भाई को समझा सकते हैं ना मैं मुसलमानों को समझा सकता हूँ. हमारे लिए यही है कि हम कानून बनाए सख्त से सख्त, हम गवर्नमेंट पे दबान करें सब मिलकर कि भाई ऐसा कोई कानून बनाओ कि मुल्क की शांति खराब नहीं हो और कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, एक दूसरे के धर्म के खिलाफ अगर बोलेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए. तो उसके लिए कानून बनाओ. कानून है हमारे मुल्क में, उसके बाद कोई शांति का पैगाम हो नहीं सकता है. જ્યોતિનાથજી, શું કહેવા માંગશો? હવે સમયનો અભાવ છે. मगर आप जुम्मा कुंज जी जी कुंज जुम्मा की मस्जिद के समय जो डिक्लेयर किया गया, इसके बाद में ये लोग एकत्रित हुए, तो मेरा ये कहना है कि मस्जिद में ही ये चीज़ को मसला बता देना चाहिए कि अगले दिन अफवाह आई थी कि भारत बंद का ऐलान दिया है. ये अफवाह को फॉरवर्ड करने की जगह पे इसका निकाल कर दिया जाता, लोगों को समझाया जाता. आप लोगों को करना था ये चीज़ कि ये अफवाह है, इसको मत पकड़ के चलो. मगर कोई मौलाना समझाने को अंदर सफल नहीं हुए, या तो समझा ચોક્કસ. મૌલવીજી, એ બાબત એ છે, ભવંડર ખડા હોય. हम लोगों ने डिक्लेयर किया है. સમાજના અગ્રણી તરીકે આપે પણ એ વખતે આગળ આવવું જોઈએ કે ક્યાંય અફવા ફેલાઈ રહી હોય, આ પ્રકારનો માહોલ ક્યાંય ઉભો થાય તો તેને ત્યાં જ અટકાવી દેવો જોઈએ. हम लोगों ने सर कल हम लोगों ने सोशल मीडिया पर भी डाला है और जुमा में भी बोला है कि भाई जो भारत बंद का ऐलान है वो किसी ने किया नहीं है, ना किसी का नाम उसमें है. बस ये अफवाह चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर. और शांति का पैगाम हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की, आप वीडियो देख लीजिए. वहाँ भी हमने शांति का पैगाम मुसलमानों को दिया है कि भारत देश की शांति नहीं टूटनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे जैसा रहे हैं. ये थोड़े दिनों में ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको बंद कर दो. हमारे लिए कानून है, कानूनी तौर पर काम करें. और गुरुजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बड़े हैं हमारे से, आप बैठिए, हमें बुलाइए, हम बैठेंगे और हम गवर्नमेंट पे दबान करेंगे इस चीज़ का कि जब तक इसके लिए सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा, चाहे वो हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोले, मुसलमान हिंदू धर्म के खिलाफ बोले, जब तक इनके लिए सख्त कानून नहीं बनेगा, जब तक ये माहौल बंद नहीं होगा. हम सबको मिलकर हुकूमत સમયનો અભાવ છે. મૌલવીજી, શું સંદેશો શું આપશો હિન્દુ સમાજ, મુસ્લિમ સમાજ, તમામ શું સંદેશો શું આપવા માંગો છો આપ? હવે આ ઘટના ન બનવી જોઈએ, આ પ્રકારની ઘટનાઓ ક્યાંય. મૌલવીજી, સમયનો અભાવ છે, સંદેશો શું આપવા માંગો છો તમામ ધર્મના લોકોને? હવે આ પ્રકારની ઘટના ન બને અને આપણે પણ અટકાવી શકીએ તેવો પ્રયાસ રહે આપણે પણ. बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ. मैं हमारे मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई कानून, हमारा मुल्क कानून से चलता है, कानून के खिलाफ कोई काम ना करे. आप धरना प्रदर्शन अगर करते हैं तो आप कानूनी उसको परमिशन ले, परमिशन के खिलाफ न जाए और हमारे भारत देश की शांति को
बिल्कुल टूटने न दे। हिंदू मुस्लिम जैसा हम मिलजुल कर रहते हैं ऐसा मिलजुल कर रहे। ये मेरा पैगाम हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को और देशवासियों को सबको मैं अपनी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ। ચોક્કસ જ્યોતિર્નાથજી મહારાજ, આપ શું સંદેશો આપવા માંગો છો તમામ દર્શક મિત્રોને પણ, તમામ સમાજના લોકોને હવે આ પ્રકારનો માહોલ ન બને ને આપણે પણ આવી કોઈ ઘટના ન બને તે પહેલા અટકાવવાનો આપણો પણ પ્રયાસ રહે, એક ધર્મગુરુ તરીકે આપનો શું સંદેશો? સમાજમાં કુંજ દરેક સમાજે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે ભારતની અખંડિતતા અને જે વિવિધતામાં એકતા છે તે જ મહત્વનું પાસું છે. આ સમાજની અંદર કોમી વૈમનસ્ય ફેલાવીને કંઈ ફાયદો થવાનો નથી અને તેનો લાભ કોણ લે? પોલિટિશિયન, રાજકારણીઓ કે જે બની બેઠેલા 4-5 કે 5% કે 7% લોકો છે તે લોકો લે છે, જેના કારણે સમાજની અંદર જે ભાઈચારો છે તે ખલત થઈ રહ્યો છે. તેની જગ્યાએ એનો યોગ્ય વે, કારણ કે અમે બી કાનૂની કાર્યવાહી પર ભાર આપીએ છીએ કે કાનૂની કાર્યવાહીઓ જે થાય કે બંધારણને આધારિત જે છે તેને આધારિત રહો. કારણ કે નિર્દોષ આજે નુપુર શર્મા બોલી બોમ્બેમાં કે દિલ્હીમાં અને તેની અસર ગુજરાતમાં થાય તો ગુજરાતના હિન્દુ ભાઈઓએ શું બગાડ્યું? આ અસર છે કે છેક વળતાથી હોય ને આજે અમદાવાદમાં દાનિશ કુરેશી બોલ્યા તેનું બરોડામાં શું? આજે આવી વાત છે કે દરેક જગ્યાએ દરેકે ભાઈચારો વિકસાવવો જોઈએ અને આવી વાતો જ્યારે થતી હોય ત્યારે સંયુક્ત રીતે તેનો વિરોધ કરવો જોઈએ, પણ પોતાની સીમામાં રહીને. આવી રીતે ખૂનામરકીથી વિરોધ ન થાય. આ હંમેશા રાષ્ટ્રની એકતાને તોડે છે અને બે બિલાડી લડે ને વાંદરો ફાવે તેવી હાલત થાય. જી જી, ચોક્કસથી સમયનો અભાવ છે, ચર્ચા અહીં સમાપ્ત કરીશું. જ્યોતિર્નાથજી મહારાજ, મૌલવીજી ફયાઝ, આપ તમામ આ ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. તો આશા એક જ રાખીએ કે આખરે વિરોધ કરે છે પરંતુ વિરોધમાં હિંસાનો સહારો ન લો, સમાજને જોડવાનું કામ કરીએ, તોડવાનું કામ નહીં. અત્યારે આ ચર્ચામાં બસ આટલું. મને આપશો રજા. આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.